Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we are proceeding with the statement questions of chapter quadratic equation. In the previous videos we have done about quadratic equation, its formula, derivation of its formula, and some questions based on nature of the roots and finding the value of k using the concept of nature of roots. So now we are dealing with the statement questions, and these are important from the examination point and obviously from the knowledge too. So one more thing, it may use the concept of chapter 3rd, pair of linear equations in two variable, as we have done that earlier. You can watch that video on my channel. Now here is the first question is, the product of two consecutive positive integers is 240. Form the quadratic equation whose roots are these integers. Let's not go on the second line. First read the statement. The product of two consecutive integers is 240. Students, make sure first of all read the statement as many times as you need to get the point what the question examiner is going to ask you or your subject teacher is going to ask. Look, we are talking about the product. Okay, obviously we are studying math, so product will be of numbers. What kind of numbers are they? Of two consecutive positive integers. Now what is consecutive? That means लगातार. Like if you are having counting, then 1, 2, 3, these are consecutive numbers. 1, 3, this is not a consecutive number. Okay, क्योंकि यहाँ पे 2 break हो रहा है, तो एक continue line, that is known as consecutive. Now they have mentioned consecutive numbers which integers, they are positive. Like if first number is 3, then another is 4. Okay, so if first number, because we have already done our linear equation of two variables, if our first integer is x, then what will be the another? 1 से 2 पे गए तो क्या होगा? 1 ऐड होगा. 2 से 3 पे गए तो 1 ऐड होगा. तो x and x plus 1. Is it okay? Now product of these two consecutive numbers, x into x plus 1, is how much? 240. ये हमारी सिर्फ फर्स्ट लाइन का रिजल्ट है. Now what we need to do, form the quadratic equation whose roots are these integers. Obviously हम एक quadratic equation बनाएंगे, उसके जो भी roots होंगे वो ये integers होंगे. देखो x into x plus 1, क्या ये quadratic है? Yes, हमने लास्ट टाइम जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने सीखा था कि quadratic इक्वेशंस कैसी होती हैं, कौन सी होती हैं. x को x से मल्टीप्लाई किया तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल्स टू 240. एंड ऑब्वियसली दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें सिर्फ फॉर्म करने के लिए कहा था, इसलिए हमने फॉर्म किया है. यू वांट टू सॉल्व इट, यू कैन इजीली सॉल्व इट. आइदर यू कैन फैक्टराइज इट और यू कैन जस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a. Okay, this is the pretty easy question. The thing is, you must get the click of the question what the examiner is going to ask you. Now let us proceed to the second question. There are few types, like these are the questions, statement questions based on the numbers, and then we will do on ages, and then we will do ट्रैवलिंग, लाइक स्पीड वाले फॉर्मूलेज यूज करेंगे. तो आपके ऐसे 4 पैटर्न बनते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस के. आज हम फर्स्ट पैटर्न करेंगे. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive natural number is 313. Find the numbers. Students, look, the sum of the squares of two consecutive natural number. Now what is the difference between these two? आपको कि मैम सेम ही है, टर्म सेम यूज हुई है, कॉन्सेप्ट सेम यूज नहीं हुआ. यहाँ पे हमने consecutive वर्ड यूज किया है, वही वर्ड हम यहाँ भी यूज करेंगे. द थिंग इज, यहाँ पे हम दो consecutive पॉजिटिव का प्रोडक्ट ले रहे थे, बट इस क्वेश्चन में क्या है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive प्रोडक्ट्स. हमने प्रीवियस में भी क्वेश्चंस किए हुए हैं, पहले भी ऐसे क्वेश्चंस. ध्यान रखिए, स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं. स्क्वायर्स ऑफ 2, अगर पहला नंबर हमारे पास फर्स्ट नंबर अगर हमारे पास x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस
1। अब इनका स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर। अब इनका सम करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। कितना है हमारे पास 313। नाउ सिंप्लीफाइड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे काम कीजिए। बहुत ज़रूरी है आपको ये समझ में आना कि आपको क्या ऑर्डर लेके चलना है, कैसे क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। एक चीज़ और मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करते हैं तो आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बट जब आप मैथ्स में स्टेटमेंट के आप इक्वेशंस बनाते हैं तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चाहिए। नॉर्मली आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं स्टेटमेंट रीड करते हो, बट सम करते हो आप राइट टू लेफ्ट चाहिए। कैसे? इसमें एक अहम चीज़ इन्होंने क्या बोली है, सबसे इंपॉर्टेंट, नेचुरल नंबर। सेकेंड कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव, 2, और उनका क्या करना है हमें स्क्वायर, उन स्क्वायर्स का हमें क्या करना है ऐड। इज इट क्लियर? नाउ सिंप्लीफाइड। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 313। नाउ दिस इज 2 टाइम ऑफ x स्क्वायर, here we have प्लस 2x प्लस दिस इज 1। ये 313 राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में आके नेगेटिव का 313 प्लस 1 हमारे पास ऑलरेडी इज इक्वल्स टू 0। द इक्वेशन विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 इज इक्वल्स टू 0। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, यस, बट क्या स्टेटमेंट ने हमसे क्वाड्रेटिक मांगी है, क्वेश्चन आंसर्स मांगा है। फाइंड द नंबर्स, दैट मीन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक। सो इजी। x स्क्वायर प्लस x माइनस 312 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 156। x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इज इक्वल्स टू में 0। 2 कॉमन ले लिया हमने पूरी इक्वेशन से। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें 156 बने और प्लस माइनस करें तो 1 बने। कुछ बच्चों को यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, या हो सकता है बहुत सारे बच्चों को क्लिक ना हो, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके से करा रही हूँ आपको ये क्वेश्चन। अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं यूज़ करना तो मैं आपको अभी डायरेक्ट बता रही हूँ, आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। 12 और 13 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 156 बनेगा, और प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा, इसको 2 तरीके से करते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमें प्लस का चाहिए, प्लस का 13x माइनस का 12x माइनस का 156। यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 13, यहाँ से माइनस 12 कॉमन आया, x प्लस 13 इज इक्वल्स टू वॉट, 0। तो x कितना आ गया 12 एंड x कितना आ गया माइनस 13। बट अगर मैं इसे फॉर्मूले से करूँ, फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। क्या करना है इसमें, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। x इज इक्वल्स टू माइनस बी, दैट मीन माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 4 इंटू a दैट इज 1 इंटू c दैट इज 156 ओवर 2। हमने इतनी प्रैक्टिस कर लिए कि ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। ठीक है, आपकी चॉइस है कि आप फॉर्मूले के साथ जाते हैं, फैक्टराइजेशन के साथ जाते हैं। द चॉइस इज योर्स। द मेन थिंग इज यू शुड नो हाउ टू मेक द इक्वेशन। हमें काम इस पे करना है, स्टेटमेंट पे, इस इक्वेशन पे, कि ये कैसे फॉर्म हो रही है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाई थी। इज इट क्लियर? नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि 2023 में भी आया हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन आता भी है जनरली एग्जाम में, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम इसको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी वैसे कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पे काम करें, क्योंकि चैप्टर का नाम हमारे पास क्वाड्रेटिक है, तो 1 वेरिएबल ही होता है, जैसे पावर 2 हो जाती है। तो क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 numbers, the sum of 2 numbers is 15 if the sum of their reciprocals is 3/10. Find the numbers. This is my short form I'm used to. Now this is the question. This question is asked so many times, but in the previous 2 to 3 years this comes in 2023. Now
रीड आउट द स्टेटमेंट, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15. दो नंबर्स का सम है 15. इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, फाइंड द नंबर. सोल्यूशन पे काम करते हैं. सम ऑफ टू नंबर इज 15. लेट द फर्स्ट नंबर इज x, okay, and let the second number is what, y. और इनका सम कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15. कितना आ गया. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो गई. ये हमने लीनियर इक्वेशन से सीखा है 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, दैट मीन रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो भी आपके पास नंबर है उसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर. यहाँ पे क्या है, x/1, y/1. हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यहाँ पे, तो x/1. इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/x. इसका रेसिप्रोकल लेंगे सेकेंड नंबर का तो 1/y. अगर हम रेसिप्रोकल लें और उनका सम लें तो वो कितना है, 3/10. अब आप कहोगे कि मैम ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई है, आप तो क्वाड्रेटिक करवा रहे हो. इट्स ओके. यहाँ से या तो x या y की वैल्यू निकाल लूँ. मैं यहाँ से y की वैल्यू ले रही हूँ. y is equals to 15 minus x, and that is substituted here, which is 1/x plus 1/15 minus x is equals to 3/10. अब बन जाएगी क्वाड्रेटिक. सिंपली एलसीएम लेना. x 15 minus x, LCM will be what, 15 minus x plus x is equals to 3/10. This is of positive x, this is of negative x. 15 by x into 15 minus x is equals to 3/10. 3 के टेबल पे 15 5 पे. ठीक है. नाउ दिस विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 10 जा 50 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास 1 है, 3 कट गया ना तो 1 है, तो कितना हो गया, x इंटू 15 माइनस एक्स. ठीक है. कुछ नहीं, अब तो हो गया सारा काम. हमारा काम जो था हमने कर दिया. 50 इज इक्वल्स टू 15x minus x square, which is the required equation is x square minus 15x plus 50 is equals to 0. मैं दोनों टर्म्स को उठा के यहाँ ले आई, या आप इस टर्म को यहाँ ले आइए, फिर माइनस कॉमन ले लीजिए. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर सकते हो बाय फैक्टराइजेशन ऑल्सो एंड बाय फॉर्मूला ऑल्सो. फैक्टराइजेशन से अगर हम करें, स्टूडेंट्स इट्स माई पर्सनल एडवाइस कि मैं चाहती हूँ आप लोग पहले फैक्टराइजेशन से ट्राई करें. बहुत ज़रूरत हो या टाइम का थोड़ा आपको इशू हो रहा हो तब जाके आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए. ठीक है. क्योंकि आपके पास अभी घर हो, एग्जाम्स का प्रेशर नहीं है, तो जितनी प्रैक्टिस आप करते हैं ना उतनी जल्दी हमें क्लिक होता है पेपर में. फॉर्मूला में सही है, यूज़ कर सकते हो. समहाउ कहीं ना कहीं बच्चा गलती कर देता है कैलकुलेशन में, तो इसके लिए अब देखो ऐसा नंबर 50 के फैक्टर्स, जाहिर सी बात है, पता है 5 10 पहला ही फैक्टर और 15 भी बना रहा है, तो उसके फैक्टर हो गए. इजिली यू कैन राइट इट x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 1 प्लस 50 is equals to 0, and further you can solve it. The main thing is what we need to do in this is this, the sum of the two numbers is 15. One more thing, कुछ बच्चे ना ये कहते हैं कि मैम आपने x और y लिया है, मैं x और y पे नहीं जाना चाहती. इट्स ओके. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर एक नंबर में x ले लूँ, फर्स्ट नंबर मेरा x है, दोनों नंबर्स का सम कितना है 15, तो दूसरा नंबर को ऐसे लिख दूँ 15 माइनस एक्स. एक 2 है, मतलब ये लगा लो 7 कैंडीज मुझे 2 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. 2 स्टूडेंट्स को टोटल 7 कैंडीज मिल रही है. अगर एक को मैंने 3 दे दी तो दूसरे के पास कितनी गई, 4. कैसे पता चला, आपने 7 में से 3 को माइनस कर दिया. ठीक है. फर्स्ट स्टूडेंट को आपने 3 कैंडीज दे दी, तो सेकंड स्टूडेंट के पास कितनी गई, 4. सिमिलरली फर्स्ट नंबर अगर मेरा x है और दोनों नंबर्स का जो सम है वो हमारे पास 15 है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स. ठीक है. तो एक तो ये हो गया. अब इनका क्या करना था हमारे पास, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गए. ठीक है. तो इनका रेसिप्रोकल करेंगे 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3/10.
यहाँ से आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल लिए थे, फिर उनको वैल्यूज पुट की थी। यहाँ पे आप डायरेक्ट कर लीजिए, दोनों ही मेथड करेक्ट है। इट डजंट मैटर कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ रहा है या थर्ड चैप्टर से आ रहा है या फोर्थ चैप्टर से आ रहा है, एग्जामिनर ये चीज़ नहीं देखता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आप आगे जाके क्वाड्रेटिक में ही फॉर्म कर रहे हैं। द थिंग इज कॉन्सेप्ट शुड बी करेक्ट, आपका जो तरीका है करने का वो सही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठा के कुछ भी लिखा है। इज इट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना जरूर चाहिए, मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कराते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, या फिर हम ये क्वेश्चन आपने जो भी मैं करवाने जा रही हूँ ऐसा आपने थर्ड चैप्टर में भी किया है और हम यहाँ भी कर लेते हैं। इन दोनों चैप्टर्स में आपने एक सिमिलैरिटी जरूर देखी होगी, स्टेटमेंट क्वेश्चन, उनके कॉन्सेप्ट्स। इक्वेशन आप दोनों तरीके से सीख गए हैं बनाना, आप चाहे क्वाड्रेटिक में फॉर्म कीजिए या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कीजिए, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जानबूझ के इस क्वेश्चन को उठा रही हूँ। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। ये क्या कह रहा है? फाइंड 2 numbers, ऐसे 2 नंबर उठाइए जिनका सम 27 एंड प्रोडक्ट 182। सोल्यूशन, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 27 माइनस x हो जाएगा, है ना। क्या करना है? प्रोडक्ट कितना है? x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। दैट्स इट। इक्वेशन ही फॉर्म करनी थी हमने। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182, और यू कैन सिंपली राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 27x 182 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अगर मैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पे जाऊं तो क्या होगा? फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर हुज सम इज, सॉरी फाइंड 2 नंबर्स हुज, सॉरी नंबर्स निकालने, मतलब हमें इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व भी करना आगे। चलो करते हैं, एक बार मैं दूसरा बता दूं। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। पहला नंबर ले लिया x, दूसरा ले लिया y। x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना? 27। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना? एक्स वाई इक्वल्स टू में 182। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपके 2 डिवीजन होते हैं। आप वापस से क्वाड्रेटिक पे जा सकते हैं और यहाँ से लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसे? यहाँ से x या y की वैल्यू निकालिए, इसमें पुट कीजिए। चलो करते हैं। अगर यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आएगी? 27 माइनस एक्स, जो कि यहाँ पुट होगी x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में 182। और अगर आपको ऐसे नहीं करना, यहाँ से क्वाड्रेटिक पे कैसे जाएंगे? सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। व्हाट विल बी द इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है? 27 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज 182 इज इक्वल्स टू 0। देखा कितने काम की चीज आई है हमारे पास। इसे कहते हैं टाइम सेविंग। जिस बच्चे को ये याद था कि अगर हमारे पास सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट गिवन हो तो हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो वो डायरेक्ट इक्वेशन बनाएगा। और जिसको नहीं आता था वो या तो ये मेथड फॉलो करेगा या ये मेथड फॉलो करेगा। क्लियर है? तो अब समझ में आ गया कि क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया। छोटा सा क्वेश्चन है, हार्डली पेपर में आता भी नहीं है। द थिंग इज हाउ यू गेट क्लिक। आपको कैसे समझ में आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 182 बने 27 प्लस माइनस 13 एंड 14 आर द नंबर्स। वी कैन सिंपली राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। वन मोर थिंग, कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे कहते हो कि मैम आप तो टीचर हो, आपको आता है। बेटा टीचर हो गए, आता नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नो डाउट हमें आता है, कुछ प्रैक्टिस हमारी आपसे ज़्यादा है, बट आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। x माइनस 13 माइनस 14 अगर हम बाहर लें तो x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 14 x माइनस 13
is equals to 0. Now these are the what? Factors. Okay. और अगर मैं इसको 0 के इक्वल इक्वेट करूँ, दैट मीन x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 13. ये क्या आ गया हमारे पास? जीरोस या क्या आ गया हमारे पास? जीरोस या फिर रूट्स. क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट? ये क्वेश्चन वैसे आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट ना हो, इसमें कुछ होगा भी नहीं, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि इसमें आपने कुछ अलग अलग तरीके सीखे. डू प्रैक्टिस ओवर सच क्वेश्चंस. इट विल बी रियली हेल्पफुल इन योर एग्जाम्स एंड टाइम सेविंग टू. आपकी जितनी भी केस स्टडीज आती हैं, ठीक है, तो वो आप कवर कर सकते हैं. डेफिनेटली आपको एक केस स्टडी 4 नंबर की ज़रूर मिलेगी, 2 भी हो सकती हैं, मतलब चॉइस में तो रहेगी, उसके अलावा भी एक, मतलब 3 हो सकती हैं. तो अगर आपको ये आता है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना. सो यू जस्ट गो विथ दैट. एंड फर्दर क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.